the revision of lines and angles. Okay. 5.1. 5.2 we started yesterday. I explained you about all the angles. ठीक है, then we did first question बच्चे. हाँ जी हाँ जी, रट्टे नहीं लगाने हैं बेटे, समझ के करना है, ठीक है. Now similarly in the second question you have to tell the corresponding angles, alternate angles. So 1 minute. So this is the given figure given to you in the book, and beta, what is asked? You have to raise your hand, okay? The pair of corresponding angle, pairs. मैंने क्या बोला है? Raise your hand. ये raise your hand, ऐसे raise your hand और साथ में answer. Yes, Jashanpreet. 2 or 6 or? Yes. हाँ जी. Okay, very good. So beta you have to tell the pairs of corresponding angles. Pairs लिखा है तो आपने सारे बता देने हैं, 1 और 5 corresponding, 2, 6 corresponding. लिखोगे कैसे? ब्रैकेट डालकर एंगल 1 एंड एंगल 5 ब्रैकेट क्लोज. फिर ऐसे ही एंगल ब्रैकेट डालकर एंगल 2 कॉमा एंगल 6 ब्रैकेट क्लोज, लाइक दिस. फाइन. 4 and 8 are corresponding, 3 and 7 are corresponding. Okay, so I hope you all know what are corresponding angles and how to identify. Next is beta the pairs of alternate interior angles. Yes, Pawan. 3 and 5. अंदर वाले एंगल्स ये 4 हैं. Alternate मतलब एक इधर एक इधर. 2 and 8, 3 and 5. They are alternate interior angles. Then is the pair of interior angles on the same side of transversal. Means what the angles we are talking about now? Yes, co-interior angles. Anshi Kanish. Huh? Co-interior Kanishka. Same side of the transversal. 3, 8 एक ही साइड पे and 2, 5. Angle 3, angle 8 and angle 2, angle 5 are the co-interior angles. ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं बेटा पेपर में. Out of the way कुछ नहीं आएगा आपको. All those questions which we are revising now from the book, same questions are going to be there in your exam. Now you have to be very much serious. Now you all, yes, you all know exams are going to be conducted offline. देख लो, चांसेस थे इसीलिए मैम बोल रहे थे. ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि हाँ जी पेपर ऑनलाइन है ऑफलाइन है. ऑनलाइन में भी आप पेपर खुद करते थे, हम ये मान के चलते हैं. ठीक है, तो बेटा अभी भी यू टुडे इज 19th, exams are from 13th. You have 25 days with you, 23, 24. बहुत होते हैं. रिवाइज करते आ रहे हो चैप्टर्स. हम वी आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो इफ यू विल बी सीरियस नाउ आल्सो, nothing is, you are going to get very good marks. ठीक है, नेक्स्ट बेटे हाँ जी
वर्टिकल ऑपोजिट क्या होते हैं? पूछा उन्होंने? अच्छा वर्टिकल, ओके okay, you all know what are vertically opposite angle. That part I missed, but you know. Hanji, everyone pay attention on the board. Now we will discuss this question. I will be discussing beta. Okay, I will be discussing after 2 minutes at your own level. Write down what is E, F, A, B, C, D. सोचो अपने माइंड में लिखो, फिर आप अपना आंसर मैच करना विद माय आंसर. Given that these lines are parallel. Yes, beta. So pay attention on the board. It is very easy question. Everyone look on the board, Kanishk. See, beta, this is a straight line. Yes, and on this straight line, these are two angles. इस straight line पे अगर आपने किया हुआ ऐसे, तो आप लिखते हैं ना एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री लीनियर पेयर, याद है? तो जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे को हॉरिजॉन्टल हो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पे अगर ऐसे कोई लाइन बीच में है तो ये वाले दो एंगल्स का सम भी कितना होता है? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. So therefore beta we will write E plus 125 is 180 degree because of linear pair. In exam you will be writing the full reason. LP नहीं लिखना बेटे, नहीं तो मार्क्स कटेंगे. ठीक है, अभी मैं रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है. अगर आप देखोगे जब हमने ये क्वेश्चन किए थे तब मैंने पूरा रीजन लिखा था. So from here what is the value of E? Sorry, 55 डिग्री. फाइन. अगर बेटा E 55 है तो F भी 55 vertically opposite angles. You will write like this. F is equal to E is equal to this vertically opposite angle. Vertically opposite angle. ठीक है. नेक्स्ट, अब हमने ये वाले चारों एंगल्स फाइंड करने हैं. ये देखो, ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल. तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला, ये है नहीं, ये वाला एंगल मतलब ऊपर वाले के साथ नीचे वाला नीचे, सारे एंगल्स को कॉरेस्पॉन्डिंग से निकाल सकते हो. नहीं तो इधर देखो, पहले ए निकालो. ए इज इक्वल टू ई 55 डिग्री. वाई कनिष्क, वाई बेटा जब मैं किसी का नाम लेती हूँ ना अर्जुन, तो बेटा मुझे उससे पूछने दिया करो. आप पहले ही ऊंची ऊंची आंसर बोलते हो तो अगले बच्चे से मैं क्या पूछूं, है ना? आप आंसर दे चुके थे ना मुझे एक बार, फिर बार बार क्यों देना, किसी से और से पूछने दो. A is 55 बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग. ये आ गया 55, इसीलिए C भी 55. 5 रह गया B और D. या तो B को इसके साथ से लीनियर पेयर, वैसे जरूरत नहीं है लीनियर पेयर लगाने की, जैसे E A के इक्वल है वैसे D किसके बराबर है? 125 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सीधा लिखोगे आप D इज इक्वल टू 125 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसीलिए B भी 125 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. So see what we are doing here. हमने क्या यूज किया यहाँ पर? हमने लीनियर पेयर किया, फिर वर्टिकली, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग. राइट? अगर आपको एंगल्स की क्लैरिटी है, which are corresponding angles, which are vertically opposite angles, then finding the missing angles are very easy. Is this question clear? Okay.
Find x. Hurry up. गलत है, 110 नहीं है। बेटा इस x और 110 का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ये x अंदर वाला एंगल है, ये 110 बाहर वाला एंगल है। We have to find the value of x as this line are, ये L M के पैरेलल है। आपको पता है ये x है, ये जो x है ये इस एंगल के बराबर होगा। यस और नो? ये माने कि आप क्लास में हो तो वीडियो ऑन करो, आपकी नोटबुक भी अभी तक मेरे पास नहीं आई है। See this question, question number 5. This is the figure beta given to you and this is 70 degree. Okay. What you have to find? अब इसमें ये given है that the arms of two angles are parallel. ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। And beta you have to find angle DGC. Where is angle DGC? DGC means this angle you have to find, DGC, and DEF. DEF, this angle you have to find. Very, very, very easy. Because of, yes, बहुत easy है बेटा। आप देखोगे AB is parallel to DE, ये सब लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हो DGC 70 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, AB is parallel to DE, this implies angle DGC is 70 degree corresponding angles। ठीक है ना, ये देखो ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 70 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से ये पैरेलल लाइन, ये 70 आ गया तो ये 70 डिग्री। एंगल GEF is also equal to 70 degree because of corresponding angles। फिगर गलत बनाई है, कौन सा? KF, ये F ही है बेटा, बुक में भी तो यही F है। बेटा लाइन के ऊपर है, ये लाइन प्रोड्यूस है, जहां मर्जी ले लो, उससे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो ऑन द लाइन ही लिया मैंने भी। उन्होंने एरो आगे पाया, उन्होंने डाल दिया। कुछ मत कह कनिष्क, कुछ मत कह बेटा, इतनी एनर्जी नहीं होती कि ऐसे सिली क्वेश्चंस के आंसर दे। सिली क्वेश्चन है, सिली भी नहीं, रबिश। पॉइंट यहाँ लिखा है F अल्फाबेट, तो यही पॉइंट है, और कौन सा हवा में पॉइंट है? इट्स ओके, नो अरे कनिष्क इतना नहीं समझा सकते बेटा। जहां F है वहीं पर F लगाया है, आंसर कैसे बदल जाएगा? कहाँ है आपका माइंड? चलिए fifth question, I hope it is clear. Now beta, figures are given, everyone look into your book. Figures are given to you, you have to tell whether L is parallel to M. So now the first figure is, Arjuna book नहीं लाए, why? ये 44, ये 126, ये LEM। The question can come in 1 mark or 2 marks। ठीक है, इसमें बेटा क्या है? That पूछा कि क्या LM के पैरेलल है, फिगर को देख के नहीं बता देना। हाँ, देखने में तो पैरेलल लग रही हैं, but you have to tell the reason
Why yes and why no? Now, so these are what type of angles? को-इंटीरियर एंगल्स का जब हम सम करते हैं 180 होना चाहिए. इसका सम कितना है? 170. आप लिखोगे since the sum of co-interior angle is not 180, since the sum of co-interior angles is not 180 degree, सम करके दिखा दिया. फिर बोलोगे क्योंकि को-इंटीरियर एंगल्स का सम 180 नहीं है, therefore L is not parallel to M. देखने में नहीं ना बेटा, वो आगे जब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे वो इंटरसेक्ट कर जाएगा. आपने प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करना है. जो बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो आप हर एक चीज लिखो मत. ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं. एवरीथिंग यू हैव रिटन इन योर फेयर नोटबुक. Just do the sums when I give you the time, but when I am explaining, just understand. Don't waste your time in writing again and again the same things. अब जैसे ये फिगर है, इसमें तो देखने में भी लाइंस पैरेलल नहीं है, बट सिर्फ देखने पे आपने नहीं बोलना yes it is parallel or not it is not parallel. ठीक है, उसका कोई नंबर नहीं है. What is given? ये 75 है and this angle is 75. Yes. See, this is 75. So this is also 75. Vertically opposite angles. आप लिखोगे 1. Angle 1 is equal to 75 degree. Vertically opposite angles. फिर लिखोगे 7. ये कैसे एंगल्स हो गए? को-इंटीरियर. 75 plus 75 is 150. Again, since the sum of co-interior angles is not 180, therefore the lines are not parallel. बट आंसर देना है ना अर्जुन, रीजन भी देना है. इस ये निकालोगे एंगल 1 बाय विच रीजन? कैसे निकालोगे एंगल 1? व्हाट्स योर नेम? प्रणय. वेरी गुड. लीनियर पेयर से ये निकालोगे, 180 में से 123 माइनस करोगे, यू विल गेट 57. तो यू कैन सी, आप लिखोगे ये एंगल 1 is 180 minus 123, 57 आ गया. फिर आप लिखोगे yes L is parallel to M because corresponding angles are equal. L is parallel to M because corresponding angles are equal. कैसे बेटा? कैसे? 123 plus 57 को-इंटीरियर एंगल्स है. ये निकालोगे, सीधे इनको प्लस कर दोगे. है कनिष्ठ? ये 123 और 57 को सीधा प्लस कर दोगे और लिख दोगे लाइंस पैरेलल हैं, 0 नंबर मिलेगा. बड़े तरीके हैं ऐसे, तो जो मर्जी करते जाओ. मैंने वन मेथड आपको बताया. जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर को इंटीरियर वाली, वो सेटिस्फाई होती हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, सेटिस्फाई नहीं होती तो लाइंस पैरेलल नहीं है. So last part you can do yourself. ठीक है बेटा, एक मिनट रुको तो कल करवाएंगे. Now बेटा you know that
you get one question of 4 marks on the basis of case study. ठीक है, तो सारे चैप्टर में से केस स्टडी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है. मैं आज आपको मैसेज कर दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर में से केस स्टडी आ सकती हैं. ठीक है, केस स्टडी बेसिकली होता क्या है, some information is given to you and based on that you have to tell the MCQs हैं. जैसे मान लो आपके पास इसी चैप्टर में अगर हम बात करें 5.2 का जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, फिगर आ गई ये वाली, इस फिगर आ गई और इसमें फर्स्ट पार्ट बन सकता है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर. कोई भी 4 पेयर लिखे होंगे, उसमें से करेक्ट पेयर का आपको टिक करना है. बात समझ में आ गई? ऐसी क्वेश्चन आ सकता है. द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज डैश 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 डैश. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का आपको पेयर बता देना है. सही, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पता होगा तो ही करेक्ट ऑप्शन टिक कर पाओगे. फाइन. ऐसे आ सकते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स. इसके बाद बेटा पेज 109 देखो, जाओ बेटा. पेज 109 पे आपके पास क्वेश्चंस हैं in which you have to find the value of x and y. That is very easy. All the angles are based on the type of angles which we have discussed. Corresponding, alternate interior, co-interior. तो बार बार same questions कितनी बार we have discussed all the things. Okay. So now you have to revise this proper thoroughly. अच्छे से इसकी रिवीजन करो. क्लास में जो चैप्टर रिवाइज करवाया वो घर जाके अच्छे से सेल्फ स्टडी करो. गो थ्रू द चैप्टर. फिर कोई डाउट है तो आप मुझसे अगले दिन पूछो. डाउट्स के लिए खुद बैठना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर मस्ती करते रहेंगे फिर कोई फायदा नहीं है. Go home, take rest. And online students, you also after your classes have lunch, sleep for some time and then bete study. हाँ जी हरजीत बोलो. Yes ma'am, this time paper will be of 50 marks or 80 marks? 50 marks. Paper will be of 50 marks. Okay ma'am. ठीक है. Exams will be of 50 marks. Offline exam 50 marks. ठीक है, वही 1.5 hour का जो टाइम होगा आपका. So start studying properly. Okay. Any doubt to anyone regarding this chapter? फुल पेपर कैसे करेंगे? करोगे जैसे हम 7 तक पहुंच 6 तक 5th तक तो स्कूल में दिया ना पेपर, बस फिर पैसे दोगे. एनी डाउट बेटा? 80 के नहीं बेटा, 50 के. 50 के मार्क्स के पेपर होंगे. ठीक है. All right students, so we have finished with lines and angles chapter. Tomorrow we are going to start practical geometry. सारे बच्चे अपनी अपनी कंपास, पेंसिल, स्केल, बी के साथ रेडी रहेंगे. Okay. All of you please bring your construction material tomorrow. We are going to discuss the questions. और बेटा अगर आप मेरे साथ साथ बनाओगे ना आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. Okay. All right. So take care. See you tomorrow.